Hello friends, let me introduce myself. I am CA Sanjeev Singh Thakur. I have been teaching different professional subjects like Contract Act, taxation since last 20 years. Many of my students requested that they feel difficulty in learning sections of different acts. So feeling their requirement and need, I have started one lecture series in which I'll make you all the sections learn in very easy and convenient way. So let us start with the first act, that is Indian Contract Act 1872. This is a super summary lecture in which I will make you learn all the sections in very fast manner. So चलिए स्टार्ट करते हैं. This Indian Contract Act has 266 sections, but section 1 to 75, if we see section 1 to 75 are related with the general contracts. Section 76 to 123 have been repealed. All these sections have been repealed and transferred to Sales of Goods Act 1930. Now they are all sections are in Sales of Goods Act. In short, we call this act as SOGA 1930. Section 124 to section 238, they are related with the special contracts. Special contracts like bailment, pledge, indemnity, guarantee, agency, and section 239 to 266 have also been repealed. They have been transferred to Indian Partnership Act 1932, that is called as IPA 1932 in short. Let us discuss sections of contract. So students of professional courses like CA, CS, they have to study only sections from 1 to 75 as a general contract, and section 124 to 238 which are related with the special contracts. These sections are not related, and no need to study these sections. So let us start. This is section 1. Section 1 of all the acts is generally related with the short title, extent and commencement. So short title of this act is Indian Contract Act 1872. Extent, it is applicable around in entire country, that means whole of the India. Now it is also applicable in Jammu and Kashmir. Section 2 is related with definitions. It covers various clauses from clause A to J. Like section A is related with the proposal, B is related with acceptance, C is related with the reciprocal, promisor and promisee, D is related with consideration, E is related with the agreement, and so on. H is related with the contract. Then section 3 to 9, they are related with the communication, revocation, acceptance and promise of proposal. You may learn those sections like CRAP, communication related with the proposal, revocation related with the proposal and communication, and acceptance of proposal and promise. When offer is accepted, it becomes promise. So communication of proposal is covered under section 3 and 4. Revocation of offer, proposal and acceptance is covered in section 5 and 6, and acceptance is covered in section 7 and 8, whereas promise is covered in section 9. So you may learn these sections from 3 to 9
like CRAP, CRAP, CRAP. C related with communication, section 3 and 4. R for revocation, section 5 and 6. A acceptance, section 7 and 8. And P promise, section 9. Thereafter section 10. This is the most important section of the Contract Act. Essential elements of a contract. So various essential elements like free consent, consideration, competent parties, agreement must not be declared as void. They are covered under section 10. Thereafter section 11 and 12. 11 and 12 related with the competent parties. Section 11 discusses the competent parties: major, a person who is major, a person who is of sound mind, and a person who has not been declared as disqualified are the competent person. Only 3 persons are competent, and these 3 persons are competent as per section 11. Whereas section 12 discusses with the unsound mind, definition of a person who is of unsound mind. Before proceeding further, let me tell you one thing, that these sections or this revision lecture is important only for those students who have at least once studied the entire Contract Act, and they need a revision to learn all the sections. A person who is going to learn very first time, this lecture is not relevant for such students. Thereafter, we move to section 13 to 20. Section 13 to 20 are related with the consent and free consent. Section 13 is related with consent. So, consent means what? Consent means when 2 persons are agreed on the same thing in the same sense, it is known as consent. Thereafter, when consent अपने आप में sufficient नहीं है, consent के साथ क्या होना चाहिए? Consent must be free. Free consent. So what is free consent? Section 14 defines what is free consent. Section 14 says a consent is free if it is not affected by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. So there is a series of sections. Consent is covered in section 13. Consent is covered under section 13. This is consent. Consent must be free, so it is covered under section 14. A free consent means a consent which is not affected by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. Now how you will learn these sections? Consent section 13, free consent section 14, and thereafter learn CUFMM, CUFMM, CUFMM. Free consent means if it is not affected by CUFMM. So CUF means, this is a mnemonic to learn. C for coercion, section 15. Coercion means a physical pressure. When a physical pressure is used to take consent of any other person, it is known as coercion. Then undue influence, when mental pressure is used to take consent of any other person, then it is said as undue influence. It is covered under section 17. Thereafter fraud means cheating someone. It is covered under section 17. Satra means khatra. So you can remember like this, Satra means khatra means fraud. And thereafter misrepresentation. If cheating is done intentionally, it is a fraud. If cheating is done unintentionally, then it is misrepresentation. So there is a very thin difference between fraud and misrepresentation. And thereafter mistake is covered from section 20 to 22, 20 से 22 तक. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सेक्शन 19 कहाँ गया? 15, 16, 17, 18, 20 से 22 ये सेक्शन कवर है, तो 19 कहाँ गया? तो 19 सेक्शन ये है. 19 सेक्शन tells about the effect of these coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. Generally, any agreement which suffers from coercion, undue influence, fraud and misrepresentation, it is voidable. Voidable means a person who is aggrieved, जो पीड़ित पक्षकार है, it is voidable at the option of the aggrieved person. वो चाहे aggrieved person चाहे तो valid, aggrieved person चाहे तो void. Then mistakes are of two types, mistake of fact and mistake of law.
then a mistake of law is related with the law of our country and law of foreign country, and mistake of fact is related with unilateral mistake and bilateral mistake. तो ये जो मिस्टेक हैं उनमें बायलेटरल मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड, अदरवाइज इट इज अवॉइडेबल. तो सेक्शन आप 13 से 22 तक लर्न कर सकते हैं. कैसे लर्न कर सकते हैं? सेक्शन 30 रिलेटेड विद कंसेंट, 14 इज रिलेटेड विद फ्री कंसेंट, देयर आफ्टर 15, 16, 17, 18 और 22 ये सेक्शंस हैं क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. और इन सबका इफेक्ट क्या होगा वो कहाँ दिया है? वो दिया है सेक्शन 19 में. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 23 to 30. 23 to 30 are related with the void agreement. What is void agreement? Void agreement means which is void ab initio, which is null and void. Null and void means zero. Zero is multiplied by anything is equal to zero. So such type of agreement which can never become a contract, which are not enforceable by law, are known as void agreement. तो void agreement के sections देखते हैं. Section 23 we start with the section 23. Section 23 is related with unlawful object or consideration. If consideration or object of a contract is unlawful, then it is void. अब consideration क्या होता है? Consideration is known as quid pro quo. This is consideration. Consideration is related with quid pro quo. Quid pro quo means it is a Latin term. Quid pro quo means something in return something. तो जैसे आपने शॉप पे एक पेन परचेज किया फॉर ₹10, तो you gave ₹10 to the shopkeeper and shopkeeper gave a pen to you. So ₹10 is a consideration for shopkeeper and a pen is a consideration for you. तो कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है तो वो वाइड होगा एग्रीमेंट. सिमिलरली इफ ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल देन ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वाइड. नेक्स्ट सेक्शन 24 इज रिलेटेड विद अ पार्टली, इफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज पार्टली अनलॉफुल. तो पार्टली अनलॉफुल है, पार्टली लॉफुल है, तो जो पार्ट अनलॉफुल है वो वाइड होगा और जो पार्ट लॉफुल है वो वैलिड होगा. देन सेक्शन 25 says without consideration. Any agreement which is without consideration is known as void. However, this rule has several exceptions whereby a consideration without a contract without consideration may also be valid. Then section 26, 27, 28 related to restraint to. In restraint means रोकना. Stopping someone to do what? Stopping someone to do marriage. Any agreement which stops anyone or restrains anyone to marriage is void. Second, section 27, any contract which stops anyone to trade, then it is also void. However, this has some exceptions. Then section 28, legal proceeding. Any agreement which stops anyone to perform or proceed for legal proceedings, then also this is void. That means आप किसी को legal proceeding के लिए रोकने का agreement नहीं कर सकते. अगर करते हैं तो वो कैसा रहेगा? वो void रहेगा. Thereafter section 29, if the agreement is uncertain, then it is also void. Like आप agreement करते हैं कि I want to sell something for some rupees at some time. This is uncertain and vague. You want to sell something means what? At some price means at what price? Some time means at what time? So this is uncertain, or all uncertain agreements are void. Void means void ab initio means zero effect. Thereafter section 30 covers wagering agreement. Wagering agreement means what? Wagering or betting. Betting means like शर्तबाजी. जैसे आप कहते हैं ना कि लगी शर्त आज शाम को बारिश होगी कि नहीं, अगर बारिश हुई तो आप 500 रुपए देंगे अपने फ्रेंड को, और बारिश नहीं हुई तो आपका फ्रेंड आपको देगा. Such type of agreements are known as wagering agreements. They are also void. Void means अगर बारिश ना हो तो आपको 500 रुपए नहीं मिलेंगे, कोर्ट के थ्रू आप रिकवर नहीं कर सकते. वॉइड एग्रीमेंट से रिलेटेड ही दो सेक्शंस और हैं. एक सेक्शन है 36, वो है
if any event which is contingent based on impossible event। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट हम देखेंगे क्या होता है, सेक्शन 31 से 36 कवर करते हैं कंटिंजेंट को। कंटिंजेंट है और वो जो कंटिंजेंसी है वो इम्पॉसिबल एक्ट पे बेस्ड है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वाइड होता है। देयर आफ्टर सेक्शन 56 इम्पॉसिबल एक्ट, ये भी वाइड का एक सेक्शन है। हमने यही कवर कर लिए 36 और 56 तो हमने यही कवर कर लिए बिकॉज दे आर आल्सो related with the void agreement। any act which is any contract which is for the impossible act is void। जैसे आपने एग्रीमेंट किया कि अगर कोई पैरेलल लाइन को मिला देगा तो फिर हम 1 लाख रुपए देंगे। Two parallel lines cannot be touched, if they are touched then they no longer remains parallel line। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा, दिस इज एन इम्पॉसिबल एक्ट। जैसे कोई कहे अगर तुम मुझसे शादी करो तो मैं आसमान से चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, तो आसमान से चांद सितारे तोड़ लाना इज एन इम्पॉसिबल एक्ट, तो ये एग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइड होगा। तो देखो हमने अभी तक कितने सेक्शंस लर्न किए, हमने सेक्शंस लर्न किए सेक्शन 1 टू एक बार फिर से देखते हैं 1 to 30। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, हर एक्ट का सेक्शन 1 यही होता है, उसमें उस एक्ट का नाम होता है, वो कहाँ पे लागू होगा, किस एरिया में होगा और कब शुरू होगा, ये 3 बातें। सेकंड डेफिनेशन में हमारे पास सेक्शन ए से जे तक सेक्शंस हैं। सेक्शन 3 to 9 आर रिलेटेड विद क्रैप, communication, revocation, acceptance and promise related with the promise proposal। सेक्शन कैसे लर्न करेंगे, कम्युनिकेशन 3 and 4, क्रैप को लर्न करना है तो क्रैप में C 3 to 4, R 5 to 6, A 7 to 8 and P 9। Then section 10 is the most important section because it tells the essential elements of a contract, it tells us the essential elements of a contract। This section 10 is the most important section of the act, it tells us the essential elements of a contract। and thereafter हमने देखा सेक्शन 11 and 12 कंटेंट पार्टीज। सेक्शन 11 बताता है कंटेंट पार्टीज, सेक्शन 12 बताता है साउंड माइंड, यूज ऑफ साउंड माइंड। सेक्शन 13 to 20 कंसेंट, फ्री कंसेंट एंड coercion, influence, fraud, misrepresentation, mistake। कैसे लर्न करेंगे ना, कफ डबल एम। फिर हमने देखा वाइड एग्रीमेंट सेक्शन 23 से 30 तक। सेक्शन 23 अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन वाइड होते हैं, अगर पार्टली अनलॉफुल हैं ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन तो जितना पार्ट अनलॉफुल है वो उतना पार्ट वाइड होता है। thereafter सेक्शन 25 विदाउट कंसीडरेशन, अगर कंसीडरेशन नहीं होगा एग्रीमेंट में तो वो वाइड होगा, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। फिर रिस्ट्रेंट टू मैरिज 26, 27, 28 तीनों किससे रिलेटेड है, रिस्ट्रेंट टू मैरिज यानी किसी को रोकने के लिए। क्या क्या रोकने के लिए, 26 मैरिज से रोकने के लिए, 27 ट्रेड से रोकने के लिए, 28 लीगल प्रोसीडिंग्स केस फाइल करने से रोकने के लिए। उसके बाद 29 अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर वॉइड। 30 वेजरिंग जो बैटिंग एग्रीमेंट होते हैं, शर्तबाजी के ठहराव, वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। उसके बाद 36 और 56 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट which is based on the contingent event and it is impossible, that event is impossible, that is also void। और अगर impossible act है तो सेक्शन 56 में वो भी void। तो यहाँ तक हमने देखा। इससे ये जो सेक्शन 23 to 56 है इन्हें हम लर्न कर सकते हैं देखो एक तरीके से। जैसे एक लड़के की स्टोरी है जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल, और अगर ऑब्जेक्ट ऑफ और कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है सेक्शन 23 पूरा का पूरा भी है और पार्टली भी है, दोनों ही अनलॉफुल हैं। तो जब दोनों ही अनलॉफुल हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। और वॉइड होगा तो फिर वो क्या होगा, रिस्ट्रेन माने रुकावट आएगी। रुकावट किसमें आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, किसमें आएगी, मैरिज में। और मैरिज में प्रॉब्लम आएगी तो ट्रेड करेगा, तो ट्रेड भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। और ट्रेड भी अच्छे से नहीं कर पाएगा तो झगड़ा झंझट शुरू होगा। झगड़ा झंझट माने लीगल प्रोसीडिंग, और लीगल प्रोसीडिंग होगी तो लाइफ में अनसर्टेनिटी आ जाएगी 29। और अनसर्टेनिटी आ जाएगी तो क्या होगा, वेजरिंग और बैटिंग, शर्तबाजी करने लगेगा। शर्तबाजी करने लगेगा तो लाइफ क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल। तो ये पूरी सीरीज है जिससे हम लर्न कर सकते हैं। यहाँ तक सेक्शन लर्न करने में एक सीक्वेंस है, इसी है। इससे आगे के जो सेक्शंस हैं वो थोड़ा सा लर्न करने में मुश्किल है, तो एक बार देखना पड़ेगा। सेक्शन 31 to 36
दे आर रिलेटेड विद कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी कंडीशन पे बेस्ड हो, जिनका जो कोलैटरल इवेंट है वो कंटिंजेंट हो, कंडीशनल हो। जैसे मैं तुम्हें ए और बी के बीच एग्रीमेंट होता है और ए कहता है मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर ये शिप इंडिया में आएगा। तो ये जो 1 लाख रुपए देना है वो किस बात पे डिपेंड है? वो एक ऐसी बात पे डिपेंड है जो भविष्य में होने वाली है, यानी शिप आएगा। अगर शिप भारत में आएगा तो वो पैसे देगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं देगा। तो ये जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 31 टू 36 ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कवर है। इसके बाद सेक्शन 37 से 45 आर रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस के 3 सीरीज ऑफ सेक्शंस हैं। फर्स्ट इज सेक्शन 37 टू 45 दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड सेक्शन ये सेक्शन 37 से 45 तक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन सेक्शन 46 से 50 टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन सेक्शन 51 टू 58 परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ये जो तीनों हैं वो पूरी सीरीज है, वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस में क्या, एक तो जनरल परफॉर्मेंस कब करेंगे, समय क्या होगा, टाइम क्या होगा, कौन परफॉर्म करेगा, परफॉर्मेंस में कंडीशंस क्या होंगी, क्या फुलफिल करनी पड़ेंगी। दैट मींस ऑल थिंग्स रिलेटेड विद परफॉर्मेंस आर कवर्ड अंडर सेक्शन 37 टू 35। देयर आफ्टर परफॉर्मेंस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट में अपना पार्ट परफॉर्म करना है, प्रॉमिसर या प्रॉमिसी को, तो टाइम और प्लेस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, किस समय पे करें और कहाँ, किस स्थान पे करें। तो ये जो समय और स्थान है वो कवर है सेक्शन 46 टू 50। कई बार कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई होता है टाइम एंड प्लेस, तो जो स्पेसिफाई है वही परफॉर्मेंस, वही टाइम और प्लेस पे परफॉर्म करना होगा। कई बार वो प्लेस और टाइम डिफाइंड नहीं होता, तो फिर क्या रूल अप्लाई होंगे वो देखेंगे। Thereafter परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होते हैं? जब दो लोगों को एक साथ अपने अपने प्रॉमिस पूरे करने होते हैं। जैसे आपने स्विगी से फूड ऑर्डर किया, और अगर फूड ऑर्डर किया या पिज्जा हट से पिज्जा ऑर्डर किया, तो पिज्जा आपके घर पे डिलीवरी आएगी, तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि आपको पैसा देना पड़ेगा। तो पहले आप पेमेंट करेंगे, फिर वो डिलीवरी देगा। तो ये दोनों लोग अपना अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज रेसिप्रोकल। सच टाइप ऑफ प्रॉमिसेस आर कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इनमें बहुत सारी बातें होंगी। पहले कौन परफॉर्म करेगा, क्या एग्रीमेंट में डिसाइडेड है ये सीक्वेंस परफॉर्मेंस का, डिसाइड है तो ठीक, डिसाइड नहीं है तो कौन पहले करेगा, ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 51 टू 58। फिर एक क्वेश्चन आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब कि पेमेंट अगर बहुत सारे सीरीज में देना है, जैसे ए ने लोन लिया बी से 10,000, 20,000, 5,000, 8,000 ऐसे अलग अलग लोन लिए, अब वो 5,000 रुपए रीपे करता है, तो क्वेश्चन ये राइज हुआ कि कौन सा अमाउंट पहले रीपे करेगा, एप्रोप्रिएशन कैसे होगा, एडजस्टमेंट कैश का कैसे होगा। तो ये जो एडजस्टमेंट से रिलेटेड रूल्स हैं वो कवर है सेक्शन 59 टू 61। अब ये तीनों जो सेक्शंस हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड सीरीज, वो उन्हें एक सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले 37 टू 45 यानी परफॉर्मेंस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का, परफॉर्म करना होगा तो क्वेश्चन अराइज होगा कि टाइम और प्लेस क्या होगा, वो कवर है सेक्शन 46 टू 50। अब टाइम एंड प्लेस डिसाइड हो गया, तो अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं तो पहले कौन करेगा बाद में कौन करेगा, वो सेक्शन 51 से 58 में कवर हो गया। उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, अगर बहुत सारे पेमेंट लिए हैं तो किस पेमेंट में पहले पेमेंट करेंगे, कौन सा पहले एडजस्ट होगा, वो सारे क्वेश्चंस डिसाइड होंगे सेक्शन 59 टू 61। इसके बाद अब कॉन्ट्रैक्ट में कई सारे चेंजेस हो सकते हैं। वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? नोवेशन हो सकता है, यानी एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जिससे पहले एक पर्सन टेनेंट थे किसी घर में तो टेनेंसी एग्रीमेंट था, बाद में उन्होंने वही घर परचेज कर लिया। अब अगर वो घर परचेज कर लिया तो फिर वो ओनर हो गए तो टेनेंसी वाला अपने आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। रेसिशन माने दोनों लोगों ने जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया ऐसे खत्म भी कर सकते हैं। रेसिशन मींस रिवोक करना, खंडन कर देना किसी कॉन्ट्रैक्ट का, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया वैसे रिवोक भी कर सकते हैं। एंड ऑल्टरेशन का मतलब माइनर चेंजेस मींस स्पेलिंग मिस्टेक्स, कोई क्लॉज ऐड करना, लेस करना, ऐसे अल्टरेशन भी हो सकते हैं। क्लियर? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट, ये भी दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट सेक्शन, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जनरल कॉन्ट्रैक्ट तो सब समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक बार बहुत शॉर्ट में हम बता देते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कैसे बनता है। सपोज ए ने ऑफर किया, ऑफर
एक पर्सन ने किया, जैसे आई वांट टू सेल माय कार टू यू, दिस इज नोन एज ऑफर, एंड बी सेज यस आई एक्सेप्ट, दिस इज नोन एज एक्सेप्टेंस। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो जब ऑफर है वो प्रॉमिस वो एक्सेप्ट हो जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस। देखते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस offer plus acceptance becomes promise. When offer is accepted, it becomes promise, and a promise plus consideration, it becomes agreement, equal to agreement. Now this is agreement. अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट Contract is equal to an agreement plus enforceability by law. What is this enforceability? Enforceability means all the legal essential elements of a contract. क्या क्या होते हैं ये essential elements? जैसे दो पार्टीज होना चाहिए, उनमें लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन होना चाहिए, दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए, दोनों के बीच में कंसेंट फ्री होना चाहिए, दोनों के बीच में कंसीडरेशन होना चाहिए, जो एग्रीमेंट है वो स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए किसी भी एक्ट में, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, एक्ट इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है वो भी होना चाहिए। तो ये सारी बातें हों तो क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होता है, और जब एग्रीमेंट एक एनफोर्सेबल होता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ये जनरल प्रोसेस है। कई बार कॉसी, नाउ व्हाट इज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मींस कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ऑल्दो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस ऑफर नहीं होते हैं, फॉर्मली नहीं होते हैं, एक्सप्रेस नहीं होते हैं, तो भी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दे आर कॉल्ड एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अब they are based on law and justice, law, justice and equity, इन पे बेस्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक पर्स मिला, यू आर गोइंग on a particular place, you are walking, and then you found one purse of a person. In that purse you found 10,000 rupees cash with some visiting cards and all some other documents. तो आपके बीच में और जो ओनर है उस पर्स का, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दिस इज कॉल्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और वो जो आप हैं, आपकी कोई कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन गई वो पर्स वापस करने की, कई सारे राइट्स बन गए। ऐसे जिस पर्सन का पर्स है उसके भी कई सारे राइट्स बन गए और कई सारे ड्यूटीज बन गई। ये सब कहाँ से बना? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से। तो पूरी सीरीज है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, सेक्शन 68 to 72। फिर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होता है। परफॉर्मेंस में बहुत सारे तरीके हैं परफॉर्मेंस के, और परफॉर्मेंस के बाद ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को एक पार्टी ब्रीच कर दे। ब्रीच मींस वायलेशन कर दे, वायलेट कर दे कॉन्ट्रैक्ट को। वायलेट कर दे माने कॉन्ट्रैक्ट में अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए मना कर दे, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाएगा तो जो दूसरी पार्टी है उसे कुछ रेमेडीज मिल जाएंगी, और वो जो रेमेडीज होंगी वो रेमेडीज कवर हैं कहाँ? सेक्शन 73 to 75। Okay friends, now all the 75 sections have been covered here. This is a super summary of all the sections. In coming video I will discuss those sections in brief, so that you will be able to learn the matter, the legal requirements also related with those sections. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताएं। Till then, thank you.